Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening, listeners, and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and we do have a third dedicated line, that's 2331 0464. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और प्रमुख खबरों पर चर्चा भी करेंगे। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर सीधे फ़ोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विश्लेषक प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं हमारे सहयोगी एस रंगभाष्यम। Thank you, Amrish. The top stories. Finance Minister says India's GDP will grow by 8% or more in the current fiscal year. Combined market valuation of 7 of the 10 most valued firms climbs to 67,259 crore rupees, and FPIs become net buyers in March 2024, injecting 35,098 crore rupees into Indian equities. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% या इससे भी अधिक की वृद्धि होगी। 10 सबसे अधिक बाजार मूल्य वाली कंपनियों में से 7 का सम्मिलित बाजार मूल्य 67,259 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और मार्च 2024 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में 35,098 करोड़ रुपए की खरीदारी की। और आज की पहली खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 8% या इससे भी अधिक की वृद्धि होगी। मुंबई में निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता के प्रभाव से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था में इसी दर से वृद्धि की आशा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही में 8.4% की वृद्धि रही, जो इससे पहले की तिमाही में दर्ज 7.6% की वृद्धि से आगे थी। उन्होंने कहा कि तीसरी तिमाही में 8.4% की वृद्धि दर के बाद विभिन्न आर्थिक संस्थाओं ने भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानों को बढ़ा दिया है। हाल में आया सबसे ताज़ा अनुमान वैश्विक वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैक्स का है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2024 के आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को अपने पिछले अनुमान से 10 आधार अंक बढ़ाकर 6.6% कर दिया है।
Yamini, what would you say about this particular news? Really, encouraging 8% GDP growth, and we have had a fairly good growth in the third quarter as well, October, December, and now in this January, March quarter, something similar is expected, and for the entire fiscal, 8%. That's really commendable, isn't it? Well, we can see a economic growth which is fast-paced and much higher than what the world markets have been observing. Where the world markets are growing at about 2%, India growing at 8% is definitely something which we can actually say that is a good growth. When we talk about, again, economic growth parameters, there has been a lot of factors in terms of the domestic consumption factor, which has played an important role there, and that does add on to the overall growth. Besides the capital expenditures which the government has been doing in terms of the infrastructure development and various other structural reforms have also played an important role. But it does also bring about a certain amount of a concern because India is a globalized economy, and one needs to recognize that the world scenario in terms of a low growth rate vis-a-vis India at a very high growth rate does make India an outlier among all growth stories that are there. So factors of inflation and various other important economic, macroeconomic stability factors need to be strengthened and ensure that they provide the necessary requisite strength to the economy. Yeah, we'll talk more about the GDP and the macroeconomic fundamentals. But before that, let's start taking phone calls, as this is a phone-in program. We have Prem Chandra Premi joining us from Delhi. Good evening and welcome to the program. नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं पिछले हफ्ते 2 बैंकों में गया था। वो एक बैंक में मैनेजर साहब से बात हुई, तो म्यूचुअल फंड के लिए पूछी थी। तो उन्होंने बोला आप ले सकते हैं आप। और दूसरे बैंक के मैनेजर बोलते हैं ये सब ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड में हमें कुछ पैसा लगाना इसलिए हमें जानकारी नहीं है, हम नए फील्ड में हैं, इसके कि कैसे कहाँ लगाना। प्रेमचंद्र जी, आपने पहले कभी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है? नहीं सर, जो हमारे मैनेजर साहब ने बोला था उन्होंने ही हमें गाइड किया था कि आप लगा सकते हैं, तभी हमें जानकारी मिली कि इसमें भी हम पैसा लगा सकते हैं। मैच्योर होने वाली है तो मैं कुछ इसमें अमाउंट डालना चाहता था, तो उन्होंने राय दी थी। और दूसरे साहब बोलते हैं कि नहीं, इसमें ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। राइट जी, देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, आप अपना एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करें कि आप किस लिए निवेश करना चाहते हैं और आप किस तरीके से अपने प्रिंसिपल के ऊपर रिस्क लेना चाहते हैं या उसे सेफ गार्ड करना चाहते हैं। उसी के तहत आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स होते हैं या डेट फंड्स होते हैं या बैलेंस्ड फंड्स होते हैं या स्पेसिफिक ग्रोथ फंड्स होते हैं या कुछ थीमेटिक फंड्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को देख करके या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हुए बनते हैं। जब भी कोई नया निवेशक होता है और अगर उनके पास बहुत अमाउंट नहीं होता, तो ज़्यादातर कहा जाता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा वो निवेश करें। और आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो उसी में सहूलियत दी जाती है कि आप म्यूचुअल फंड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या आरबीआई सिक्योरिटीज़ में भी निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स के प्रोग्राम ज़रूर सुनते रहिए, और बहुत सारे और प्रकाशन आते हैं जो म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंसेस के बारे में बताते हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और वो कितनी प्रपोर्शन किस सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं और कहाँ तक निवेश करते हैं और उनके क्या पास्ट परफॉर्मेंसेस रहे हैं, वो आपको पता चलते रहेंगे। Right. And Yamini, at this juncture, I want to bring in this point, since Prem Chandra ji put this question. There are still old timers who kind of try to equate stock markets with some sort of a gambling, and they say that it's a kind of a no, and you have to stay away from it. But we have come a long way. Stock market is not at all gambling. This is backed by fundamentals, isn't it? Any investment which does not carry sufficient due diligence
That means that there is not sufficient work that has been done in understanding where you're investing, why are you investing, and what is the intrinsic value on which you're betting, and how are you likely to see the returns either on a revenue basis or on a capital appreciation basis, and how does it really meet your life goals or investment objectives becomes a speculation. So a lot of times people invest into stock markets at hearsays or at the statements of their stockbrokers or friends, or let's say when the markets are going up and then they feel that they may not lose a chance. But when they do it based upon the fundamentals of what the company businesses are, how the company has been performing, what is its future growth and the prospects, they automatically become investments rather than speculations. Well, listeners, you're tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani. It's time now for a quick commercial break. अपने सुरक्षित भविष्य कर्मचारी npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back, listeners. You're tuned into the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani, and we are discussing mutual funds and related issues. And just to remind our phone numbers are 2331 4444, and our second line is 23421050. 23421050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. और यहाँ पर हमारे श्रोता योगेश जी लाइन पे हैं, उनका सवाल लेते हैं। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि मैम जो हम फिक्स इनकम एलोकेशन में डेट फंड में जो निवेश करते हैं, इनमें एक हम शॉर्ट टर्म डेट फंड में और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में करते हैं। इसके अलावा क्या क्रेडिट रिस्क फंड में भी करा जा सकता है? क्या ये भी सेम तरीके के फंड होते हैं? ये मेरा सवाल है। जी देखिए, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स प्राइमरीली एक जो स्पेसिफिक नीड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की उनके लिए होते हैं, या जो पर्टिकुलर मनी मार्केट इन डेट फंड्स होते हैं उनके लिए होती है। जहाँ तक क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं वो बेसिकली एम्ड होते हैं टू ओवरकम जो रिस्क फैक्टर है ख़ास तौर पे क्रेडिट देने पे, उनसे रिलेटेड होते हैं। सो दीज आर अगेन डिफरेंट thematic funds, but again it depends कि वो मनी मार्केट फंड्स हैं या लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। जब भी आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में देख रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि बॉन्ड्स या डेट्स में इन्वेस्ट करें। अगर क्रेडिट रिस्क फंड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिकली, देन वो फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में आते हैं। अगर वो नहीं इन्वेस्ट करते तो वो उसमें नहीं आते। Right. And Yamini, going back to the GDP story, 8% growth in a financial year. But let's, kind of try and do a mini review of the, macroeconomic fundamentals at this juncture. What would you say India is fairly, well placed, whether we talk of the GDP, whether we talk of inflation? Inflation has come down within the, targeted range of RBI. Our forex reserves are really good, $640 billion and counting. So overall, exports, they are doing fairly well. So overall, the macroeconomic picture is kind of rosy right now. Well, I would take a more conservative view on that, because I do feel that there are international and domestic factors which are at play besides just the economic numbers. And among those international factors are the geopolitical risks that still continue to play an important role, which is the Red Sea crisis and the peace making efforts that are still on a continuous basis between the Israel and the Hamas war. Also, the Russia-Ukraine war has not seen an end as yet, and there still creates a lot of problems there. But having said that, crude prices have still been stable. Yeah, fingers but then crossed. There is a meeting in the month, in this month itself, where the OPEC is meeting, and there would be decisions in terms of the supply cuts or an increase accordingly. And there is a talk in terms of how energy difficulties are still building on, and the supply chain constraints on the global level because of the geopolitical tensions tend to be there.
Also, when we talk about the domestic factors, yes, we see a GDP growth rate there, but there are other concerns which also are a part of it, which includes that there are about 80 crore people we are feeding through the PM Samman Garib Kalyan Yojana, Anna Yojana. So when we talk about overall macroeconomic factors and inflation, global supply chain factors play an important role. Also, the fact that we are looking forward for a more normal monsoon this time, which can definitely bring in better results. Also, the high frequency indicators, which were the automobiles, there were news that there might be a discount rally that might come in, which is not a very good sign. And most important, that many economies in the world are not likely to be seeing a very good economic situation. That does not bring about an export. Yeah. And one of the most important factors is elections, which does bring about a change in the socio-political structures across the world. I don't say only India. And these are important democracies and important countries that are going to go in for elections that will decide the forward-looking So structure. it's a wait and watch policy. Yes. और मुंबई से हमारे श्रोता हरीश लाइन पे हैं। हरीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। Hello, Harish. Do we have you online? I think we have lost contact with Harish. Well, never mind. Happens in a live program like this. Let's go across to our other caller. We have Amit joining us from Mumbai. Good evening, Amit, and welcome to the program. Hello, Amit. यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, सवाल पूछिए। या थैंक यू सर। एक्सपर्ट से दो सवाल थे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड और डायनामिक फंड, इसमें स्ट्रेटेजी में फर्क क्या है, और दूसरा ये था कि जो एचडीएफसी का जो निफ्टी 50 या भी जो एक नया फंड था, और एक निफ्टी 30 भी है एक कुछ टाइप का, तो उसमें कुछ क्या फर्क है क्या? आपने डायनेमिक फंड पूछा और दूसरा कौन सा था? Flexi cap. फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप। जी देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड की आप बात करते हैं, ये स्पेसिफिकली उनका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। एक डायनेमिक फंड होता है जिसमें एक्टिव कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होती है, चेंज इन दी पोर्टफोलियो होता है, और लेकिन उसकी स्कीम की वो किस बेसिस पे कितना इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, पर उसमें जो वो चेंजेस करेगा वो उसको डायनेमिक रखता है। फ्लेक्सी कैप अगेन कि कितना कैप इन्वेस्टमेंट का जाएगा उसके ऊपर स्पेसिफाई करता है। जहाँ पे निफ्टी 50 है या निफ्टी 30 की बात करें, तो अगर आपको पता हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है जिस स्टॉक्स के अंदर HDFC इन्वेस्ट करेगा, और उससे उस कॉर्पस को जो वो इन्वेस्ट करेगा उस म्यूचुअल फंड को वो निफ्टी 50 कहेगा। ऐसे ही निफ्टी 30 जो है वो ही उस पे उन सिक्योरिटीज़ में जो निफ्टी 30 में आती हैं उनमें निवेश करेगा। और मुंबई से हमारे श्रोता संजय लाइन पे हैं। संजय जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ मैडम, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन को मोबाइल पर देखने का फॉर्मेट चेंज हो गया है कुछ दिनों से। उसमें पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा है, पीयर कंपैरिजन रिटर्न का नहीं दिख रहा है, बहुत ही इनकन्वीनियंस हो रहा है। प्लीज पहले वाला ही फॉर्मेट लागू कीजिए, ये वाला फॉर्मेट बहुत ही इनकन्वीनियंट है। जी देखिए, आप जिस भी बैंक के द्वारा या स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के द्वारा निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी ने अपना डैशबोर्ड चेंज किया होगा, या उसने एक नया कोई डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस, या जिस तरीके से आप अपने कंप्यूटर से अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसमें कुछ बदलाव किया होगा। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप जिससे भी बैंक है तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर लें, वो आपको समझा देंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो या अपना निवेश कैसे देख सकते हैं। और अगर स्टॉक ब्रोकर से किया है तो उनकी एक हेल्पलाइन नंबर होती है और आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर डेडिकेटेड होता है, उससे बात कर लीजिए। वो आपको समझा देंगे कि किस टैब को दबाने से या किस चीज़ को देखने से आपको आपकी जो जानकारी आप चाहते हैं वो मिल जाएगी। And Yamini, many a times the old website also is functional till some time the new website picks up or the portal picks up, just for convenience purpose. Usually they do give जो पुरानी वेबसाइट है उसका भी एक कहीं ना कहीं लिंक दिया जाता है, पर जहाँ तक मैं आपकी समस्या समझ पा रही हूँ वो वहाँ पे कोई टेक्निकल अपग्रेडेशन हुआ है या चेंज हुआ है यूज़र इंटरफेस में, इसलिए शायद वो आपके टैब्स हैं पर आपको नहीं पता कि कहाँ पे क्लिक करना है। Right. And let's move on and take a look at some of the other stories that we are following for you this evening.
The combined market valuation of 7 out of the 10 most valued firms climbed to 67,259 crore rupees in a holiday shortened last week, with Reliance Industries emerging as the biggest gainer amid an overall optimistic trend in equities. Reliance Industries continued to rule the chart of the most valued firms, followed by TCS, HDFC Bank, ICICI Bank, Bharti Airtel, State Bank of India, Infosys, LIC, ITC and Hindustan Unilever. Markets saw just 3 trading sessions last week, as they were closed on Monday for Holi and on Friday for Good Friday. The valuation of Reliance Industries jumped 45,262 crore rupees to reach a mammoth 20,14,010 crore rupees. State Bank of India added 5,533 crore rupees, taking its valuation to 6,71,666 crores. The valuation of Life Insurance Corporation climbed to 5,78,484 crores. ICICI Bank, HDFC Bank and Hindustan Unilever also added significant amount in their market capitalizations. Listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on Akashvani. It's time now for a quick commercial break. मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। यामिनी जी, हम देखते हैं कि जो नए निवेशक होते हैं वो शेयर बाज़ार की जगह म्यूचुअल फंड रूट ही अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके सामने एक समस्या आती है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। अगर उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है तो वो इस बात में फंस जाते हैं कि इक्विटी बेस्ड शेयर लें, कि डेट बेस्ड लें, कि बैलेंस म्यूचुअल फंड लें। तो ऐसे जो निवेशक हैं, आप उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। एक एसोसिएशन है आईमा करके, जो ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन, उसके साइट पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी जानकारी अवेलेबल है। सेबी की वेबसाइट पे भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी जानकारी अवेलेबल है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स में एक ख़ास तौर पे जो आपको ध्यान रखना है, वो पहली बात आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप किस लिए निवेश करना चाहते हैं, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। दूसरा, आप कितना रिस्क उठाना चाहते हैं। अगर आपकी कोई भी उम्र है उसे 100 से माइनस कर दीजिए। अगर आप 25 साल के हैं तो 100 माइनस 25, दैट मीन्स 75% तक आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं जो इक्विटी में निवेश करते हैं 75% तक या 65% तक या कोई एक पर्टिकुलर कैप तक। तो आप उसके लिए इक्विटी ग्रोथ फंड्स में जा सकते हैं। ऐसे ही कोई भी फंड है, उसकी जो स्कीम आती है उसको ध्यान से पढ़ें। उस स्कीम में बताया होता है कि वो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, वो किस पोर्टफोलियो में निवेश करेगा, आपके जो कोई कॉस्ट होगी वो कॉस्ट कितनी लगेगी, एंट्री कॉस्ट कितनी है, एग्ज़िट कॉस्ट कितनी है, या टीआर चार्जेस कितने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी जाती है। और आप दूसरा, अपने बैंक से या आप अपने स्टॉक ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। म्यूचुअल फंड की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस भी देखिए और उनके जो प्रीवियस जो बाकी के बेंचमार्क्स के साथ वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके साथ वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी प्रकाशन है, उनसे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप छोटी इकाइयों में निवेश करना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक माध्यम होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने निवेश कर सकते हैं, 500 रुपये से शुरू करके। तो उससे भी आपका पैसा बन जाता है म्यूचुअल फंड निवेश के अंदर। And let's take our next caller. We have Sukhdev joining us from Delhi. Good evening and welcome to the program. Good evening to everybody. Yeah. Sir, my question is regarding income tax. I want to know that the minimum slab rate nowadays for income tax is 5%. Mm-hmm. But whereas the TDS being deducted at 10%. Earlier the minimum was 10% and TDS was 10%. It was okay. Okay. But now the TDS being deducted at 10%. Why it has not been shifted to 5%? Reduced. Okay. Why the Fine. disparity? Got Thank it. you. Got it. Yes. See, Yamini, TDS what is would a you say? tax deducted at source.
इसका माध्यम यही है कि जब आपको कोई इनकम होती है तो जो भी आपको वो पैसा दे रहा है वो टैक्स को जो है पहले जो है डिडक्ट कर ले। इनकम टैक्स स्लैब में कमी करने का फ़ायदा था रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस लाना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम रेट का फ़ायदा पहुँचे। पर टीडीएस का जो मुख्य स्तर पे ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये है कि टैक्स जो है जिस सोर्स से जनरेट हो रहा है उसे लिया जाए। और क्योंकि जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तब आप बता सकते हैं कि आप किस स्लैब में आते हैं, और अगर आपका टीडीएस ज़्यादा भी कटा होता है उसके अंदर आपका 26 AS है, उस फॉर्म में आपके सारे जहाँ से टीडीएस कटे हैं या जहाँ से इनकम आई है वो सारा मेंशन्ड होता है। आप उसके लिए रिफंड मांग सकते हैं, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। Right. Let's move on now. In a significant market shift, foreign portfolio investors or FPIs have become net buyers in March 2024, injecting some 35,098 crore rupees into Indian equities. This surge was observed across various sectors, including capital goods, automobiles, financials, telecom, and real estate. Despite some late selling in the month, activity levels were notably higher than the subdued performance seen in January and February. In the first 2 months of 2024, FPIs were net sellers, offloading equities worth 25,744 crore rupees in January and making purchases of only 1,539 crore rupees in February. यामिनी जी, जो म्यूचुअल फंड में लोग निवेश करते हैं तो फंड का चुनाव करने के बाद उनके सामने जो दूसरी बड़ी समस्या आती है कि उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कितनी होती है, कब रिडीम करने पर वो अपने टैक्स को बचा सकते हैं और कब करने पर कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो टैक्स की लायबिलिटी है इसके बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देना चाहें। जी देखिए, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में हमें दो तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला है डिविडेंड्स जो हमें मिलते हैं म्यूचुअल फंड से, और दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन। डिविडेंड्स म्यूचुअल फंड्स समय समय पे अनाउंस करते हैं जो आपके पास पैसा आता है, पर क्योंकि अब डिविडेंड्स इनकम टैक्स पेयर्स के हाथ में एसेसिबल है तो उन्हें अपनी इनकम में एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जोड़ना पड़ता है, और फिर जो स्लैब में वो आएंगे उसके ऊपर टैक्स रेट पे करना होगा। जहाँ तक कैपिटल गेन्स की बात है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर से इनकम में ऐड होगा और जो टैक्स स्लैब्स हैं वो लगेंगे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म टैक्स रेट पे करना होगा। Right. And before we are coming towards the end of this program, before we conclude, what would you say for the first time investors? Should they go to equity funds or to strictly debt funds, or maybe hybrid funds? Well, it always depends upon your risk appetite कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। When you're on a younger fold, you can take greater risk, but when you're towards more of a retirement age or above 50, then risk should be less. So after 50, a more debt-oriented fund is preferred, and before 50, because you have possibilities of income, an equity fund is preferred. Right, that's it. We'll have to call it a day. We'll have to thank all our callers for their active participation in today's program. And Yamini, as always, thank you so much for joining us in the studios. And before we close, a quick look at the top stories. Finance Minister says India's GDP will grow by 8% or more in the current fiscal year. Combined market valuation of 7 out of the 10 most valued companies climbs to 67,259 crore rupees, and FPIs become net buyers in March 2024, injecting more than 35,000 crore rupees into Indian equities. And with that, we come to the end of this edition. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।